Welcome to online class for 12th class student of MP board. Dear students, we have learned lesson 1 through our online classes. I think you have understand all the explanations and you have completed your question answer in your notebook. Many of the students had sent me their notebooks picture in the WhatsApp group. I appreciate all the students and thanks to all those students who are daily reading with me. Now today we are starting our second chapter. Let's begin the topic. Our lesson second is a friend who came from the sky. एक ऐसा साथी जो आसमान से आया है. A friend who came from the sky. It is a very nice story about a disabled person. So I want to everyone pay attention for these lessons because it also give some lesson to us in the life for disabled person. Do you know someone with disability? I think in every village, in every ward, there are someone who are disabled. Someone by legs, someone by hand, someone by eyesight, someone by mental, someone by ear. So many types of disability are present in the human body. And in Hindi we can say that disability means Divyang, the person who are unable to work with their body part called disability. How do you feel about the disabled people? It is an important question that how do you feel? I think everyone are feeling pity for the disabled people and we always behaved helping to the disabled people. What do you think they need the most? If you know them, then you always think that what they need and what they need the most. What is special about them and what are the special qualities about them? Now read this lesson with me. You will find out all these answer of the question. Look at this picture. There are playing some boys in the ground and a little girl with their cycling chair is looking for the student who are playing in the ground. I think you have understand it is the story about a girl who are disabled. Let's begin the lesson. It was one of those days in March when a wind started blowing from nowhere ending in a thunderstorm. मार्च का दिन था और लगभग शाम होने जा रही थी. तभी अचानक हवा चलने लगती है और हवा धीरे धीरे तूफान का रूप लेती है. A cool breeze and had been blowing since afternoon and the sky was rapidly becoming overcast. ठंडी ठंडी हवाएं तेजी से चल रही थी और आकाश में तेजी से बादल छाते जा रहे थे. There were sudden cracks as little branches of tree in the strong breeze and feel. तभी अचानक
तेज हवाओं के कारण किसी पेड़ से डाली के टूटने की आवाज आई। द एयर वॉज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव। हवा में तो ऐसा लग रहा था जैसे पत्ते ही पत्ते उड़ रहे थे। मिनी सैट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी of their first floor flat and watched the children playing in the park outside. मिनी अपनी व्हील चेयर पर बालकनी में बैठी हुई पार्क में खेल रहे बच्चों को देख रही थी। The children did not seem to mind a strong breeze. उन बच्चों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कितनी तेज हवाएं चल रही हैं और the yellow leaves of the neem falling on their heads. कई बार तो नीम की पत्तियां बच्चों के सिर से भी टकरा रही थी। They were engrossed in their ball game. वे अपने बॉल के साथ खेलने में मस्त थे। मिनी कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन। तभी अचानक किचन से उसकी माँ ने आवाज लगाई कि मिनी अंदर आ जाओ। जस्ट ए मिनट मम्मी, सेड मिनी इन हर क्वेवरिंग वॉइस। मिनी ने पलटते हुए जवाब दिया कि मम्मी बस एक मिनट और। जैसा कि आप लोग अक्सर आवाज रिटर्न में देते हो, कुछ काम करते हुए मम्मी कुछ बोलती हैं और आप लोग तुरंत कहते हो जस्ट अ मिनट मम्मी। स्टेयरिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर टू लुक एट द गैम्बलो। और इसके साथ ही वह पुनः उन बच्चों को खेलते हुए देखने लगी। नाउ कम इन द नेक्स्ट पैरा। हर मदर केम आउट ऑन द बालकनी एंड मिनी, उसकी माँ बालकनी में आ गई। मिनी बेबी इज टू विंडी टू सिट आउटसाइड। That I like good girl. Come on inside. That's is like a good girl. उसकी माँ ने बालकनी में आते हुए उसे बड़े प्यार से कहा कि मिनी बेटा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम अच्छे बच्चों की तरह इतनी तेज हवा में मत बैठो और अंदर आ जाओ। मिनी continued to peer through the balcony railing. In 1 minute she pleaded. मिनी ने लगातार बालकनी की रेलिंग को पकड़े रखा और कहा कि बस थोड़ी देर और मम्मी। हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क साइड एंड वेंट बैक इनटू हाउस सेइंग मिनी यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग, आई डोंट वांट यू वेट। उसकी माँ ने एक चेतावनी भरे शब्दों में उससे कहा कि मिनी, मैं नहीं चाहती कि तुम गीली हो, इसलिए वर्षा शुरू होने से पहले अंदर आ जाना। मिनी वॉज 12 years ओल्ड एंड ए स्पास्टिक। मिनी एक 12 वर्ष की बच्ची थी जो लकवे से ग्रस्त थी। A spastic is a person who has no control over his hand and legs from birth. एक लकवाग्रस्त व्यक्ति वह होता है जिसका बचपन से उसके हाथ और पैरों पे जन्म से ही कंट्रोल या नियंत्रण नहीं रहता है। Minnie could not walk or button up her shirt, but she could crawl and had learned to use her hand to brush her teeth and use a spoon to eat. हालांकि मिनी चल फिर तो नहीं सकती थी, परंतु वह अपने शर्ट के बटन लगा लेती थी, घिसट घिसट कर जमीन पर चल लेती थी और साथ में उसने अपने दांतों को ब्रश करना भी सीख लिया था और इसके साथ वह चम्मच से अपना भोजन भी कर सकती थी। She went to the special school where she was learned the exercise and underwent speech therapy as well as learned the usual subject like other children. वह एक विशिष्ट स्कूल में, जहाँ पर विकलांग बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर अध्ययन करने के लिए जाती थी और वहाँ पर वह बोलने की कला सीख रही थी और साथ ही वह दूसरे बच्चों की तरह अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ना सीख रही थी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैरा। All these, but Minnie had no friends. मिनी का कोई भी मित्र नहीं था। Ever since they had come to this house 6 months ago, Minnie had no one to play with. हालांकि इस नए मकान में आए हुए उनको 6 माह के करीब हो चुके थे, परंतु मिनी के पास कोई भी खेलने के लिए साथी नहीं था। All the neighborhood children seemed to be busy with their own games and school, and they had never become friendly with Minnie. आस पड़ोस के बच्चे आपस में ही एक दूसरे के साथ खेल खेलने में मगन रहते थे और उनमें से कोई भी मिनी के साथ दोस्ती
नहीं कर पा रहा था या नहीं था दोस्त, मनी का दोस्त नहीं हो पा रहा था। इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉचिंग द चिल्ड्रन एट देयर प्ले। मिनी का यह समय गुजारने का सबसे अच्छा तरीका था कि वो बालकनी में बैठ जाती थी और खेलते हुए बच्चों को देखती थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल। तभी अचानक तेज तेज बूंदें गिरने लगीं। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम। बच्चे इतनी बारिश में भी खेलना नहीं छोड़ रहे थे। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन। तभी अचानक एक लाल बॉल ऊपर नीचे उचका रहे थे बच्चे। सडनली देयर वर अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रन। तभी अचानक वहां पर एक नई बॉल आकर के गिरी, अ ब्राउन वन, जिसका कलर ब्राउन था। द गर्ल स्टार्टेड स्ट्रीमिंग एंड द बॉय शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। लड़कियां चीख उठी और बच्चे तेज आवाज में चिल्लाने लगे। अ बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल। एक लड़के ने हिम्मत करके उस बॉल को टच करने का प्रयास किया। व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट विंग्स एंड फ्लू अप। इसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गई। बिफोर मिनी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, द न्यू बॉल हैड फ्लोन इनटू हर बालकनी एंड लैंडेड ऑन हर लैप। वह गेंद अचानक उड़ते हुए मिनी की गोद में आकर के बैठ गई। इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक। लगभग कुछ क्षण लगे मिनी को इस झटके से वापस आने में। सी सा दैट द थिंग्स इन हर लैप वाज नॉट ए बॉल एट ऑल बट अ बर्ड। उसने महसूस किया कि जो गेंद उसके गोद में आकर के गिरी है वह कोई बॉल नहीं है बल्कि एक पक्षी है। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप। वह उसकी गोद में बड़े प्यार से बैठी थी। ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट। हालांकि उसके शरीर से कपकपाने की कंपन की स्थिति महसूस हो रही थी। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ। और तभी तेजी से बारिश शुरू हो गई। मिनी शाउटेड हर मदर एज शी केम आउट टू व्हील द गर्ल। मिनी की मां चिल्लाते हुए आई। व्हाट इज दिस, ही क्राइड स्टार्टेड व्हेन ही सॉ द बर्ड। जैसे ही उन्होंने पक्षी को देखा मिनी की मां ने, उसने कहा कि ये क्या है। मम्मी, इट इज ए डक, ही केम फ्रॉम द स्काई, मिनी विस्पर्ड। मिनी ने कहा कि मम्मी ये एक बदक है, यह आकाश से आई है। विस्पर्ड, हियर विस्पर्ड मीन्स धीरे से कहना या फुसफुसाना। द वर्ड was indeed a duck, a sobbler, a yearly visitor to India from the cold north. He was probably migrating back to his native land with his flock when he must have lost his way in the strong current of wind that was blowing. निश्चित तौर पर यह एक सोबलर बदक थी। सोबलर बदक उसे कहा जाता है जिसकी चोंच चम्मच के आकार की होती है। यह निश्चित तौर पे उत्तरी क्षेत्र से भारत देश में आई थी और ये एक माइग्रेटिंग बर्ड, ये पक्षी भोजन के लिए मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। और जब ये वापस लौट रही थी अपने नॉर्थ के लिए तो निश्चित तौर पे तेज हवा के झोंके में ये अपना रास्ता भटक गई। इन दिस फ्रेंटिक एफर्ट टू रिजॉइन हिज मेट्स ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग। और अपनी इस पूरी ताकत में इस हवा के विपरीत ताकत लगाने की वजह से ये पंखों से घायल हो गई थी। नाउ कम इन द नेक्स्ट पैरा। ही वॉज अ ब्यूटीफुल वाइल्ड डक। वह बहुत ही प्यारी जंगली बदक थी। हिज डाउन वॉज सॉफ्ट एंड वेलवेटी एंड हिज बीक वॉज ब्रॉड लाइक ए शॉवल। उसके पंख बहुत ही कोमल और मखमली थे। उसकी चोंच बिल्कुल चम्मच के आकार जैसी चौड़ी थी। हिज फीदर ग्लिंटेड। उसके पंख चमक रहे थे ब्लू कलर से, ब्लू व्हाइट एंड ब्राउन। ब्लू व्हाइट और ब्राउन कलर से उसके पंख चमक रहे थे। एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉस्टेड। हालांकि इस क्षण वह बड़ी थकी हुई दिख रही थी। हियर द वर्ड हार्ड वर्ड एग्जॉस्टेड, इट्स मीन्स थकी हुई। मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप व्हेन सडनली ही निप्ड हर हैंड। मिनी की मां ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही उसने पकड़ने का प्रयास किया उसने चोंच से तुरंत उसकी चुकोटी काट दी। आउच, सी क्राइड ड्रॉइंग हर हैंड बैक। तुरंत आवाज आई आउच। जैसे अपन कोई चीज चुकोटी काटते हैं तो तुरंत आवाज करते हैं आउच। हर मदर आल्सो क्राइड। ऑल एट वंस ही फ्लटर्ड टू द ग्राउंड
एंड हडल्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम। तभी वो पंख फड़फड़ा करके उड़ी और लिविंग रूम के एक किनारे में जाकर के बैठ गई। ऑल थ्रू द इवनिंग मिनी एंड हर मदर ट्राइड टू मेक द डक ईट। मिनी की माँ ने बहुत प्रयास किया कि ये कुछ खा ले, परंतु उसने खाना नहीं किया। दे पुट ब्रेड क्रम्स, नट्स एंड द फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ हिम बट ही वुड नॉट टच ए थिंग। उन्होंने उसके सामने रोटी के टुकड़े, ब्रेड के टुकड़े, नट्स, फ्रूट्स, ये सभी कुछ रखे, परंतु उसने किसी भी चीज को टच नहीं किया। मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क सजेस्टेड मिनी। मिनी ने तुरंत कहा कि मम्मी इसको कुछ दूध और चावल मल करके दे दो, शायद ये उसको खा ले। हर मदर मैश्ड सम कुक्ड राइस इन ए बाउल, एडेड मिल्क एंड शुगर एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक फेड हिम विथ एन इंक फिलर। मिनी की माँ ने राइस पकाया और एक बाउल में दूध और शक्कर के साथ मिला करके उसकी चोंच में इंक फिलर के माध्यम से उसको खिलाया। As soon as he had some food in his stomach, the duck became visibly more alert. जैसे ही बदक के पेट में कुछ अन्न गया, वो थोड़ी अलर्ट दिखने लगी। His eyes brightened and tried to open his wings, but gave it up after a few efforts. उसकी आंखों में चमक उत्पन्न हो गई और उसने अपने पंख फैलाए और कोशिश की कि वो उड़ सके। I know what his name is. It is मित्र। मिनी ने कहा कि मुझे इसका नाम मित्र रखना है। मिनी सेड हर मदर स्माइल। मिनी ने अपनी माँ से मुस्कुराते हुए कहा कि इसका नाम मित्र रखना है। Where shall we put मित्र in bed मिनी? हर फादर asked her। उसके पिताजी ने कहा कि मिनी ये बताओ कि इसका बिस्तर कहाँ लगाएंगे? पापा I want him near me। पापा मैं चाहती हूँ कि ये मेरे करीब में रहे। He may need me in the night। इसे भी रात में मेरी जरूरत पड़ सकती है। सेड मिनी। मिनी ने कहा कि इसे मेरी जरूरत रात में पड़ सकती है। फाइनली दे सेटल्ड मित्रा इन ए बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ बिसाइड मिनी बेड। और अंत में उन्होंने एक बास्केट में कुछ लकड़ी के टुकड़े भर करके मिनी के बेड के बाजू में रख दिया। नाउ कम इन द नेक्स्ट पैसेज। Contrary to her expectation, Mitra did not wake Minnie up in the night at all। हालांकि जैसा उसने उम्मीद किया था, मित्र ने उसे रात में बिल्कुल नहीं जगाया। When she woke up early in the morning, Minnie's first thought was a look into the basket by her bedside। जैसे ही वह सुबह उठी तो उसने पूरी कोशिश की कि वह सबसे पहले उस बदक को देखे। To her horror, she realized it was empty। और जैसा कि उसे डर था, उसने देखा कि बास्केट तो खाली है। वह डर गई। मित्र मित्र साउटेड मिनी। मिनी ने चिल्लाया कि मित्र मित्र। गेटिंग अप ऑन द एल्बो। अपने कोहनी के सहारे उठते हुए उसने तुरंत चिल्लाया कि मित्र मित्र तुम कहाँ हो। देन सी saw him looking brightly at her from the bathroom, she burst out laughing। और जैसे उसने देखा कि अरे ये तो बाथरूम की दिशा में है, तो वो तुरंत हंसने लगी। The bird could only hope along, thought he tried valiantly to fly। पक्षी अपनी अंतिम कोशिश के हिसाब से कोशिश कर रहा था कि वो उड़ सके। When Minnie crawled up to him, he flapped his wings and hopped away। जैसे ही मिनी घिसट करके उसके पास पहुंचती थी, वो उड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता था। Minnie made a supreme effort and caught him promptly, nipped her। Promptly he nipped her। मिनी ने अपनी पूरी कोशिश की और उसे पकड़ लिया, लेकिन जैसे उसे पकड़ा तो बर्ड ने अपनी चोंच से पुनः मिनी को एक चिकोटी काट दी। मिनी व्हाट हैपेंड क्राइड हर मदर इन अलार्म एंटरिंग द रूम। मिनी की माँ खतरे को देखते हुए तुरंत चिल्लाते हुए कि क्या हुआ मिनी। बट वेन शी saw the duck in her daughter's arm, her alarm turned into merriment। और जैसे ही उसने देखा कि उसकी बच्ची के हाथों में प्यारी सी बदक है, तो उसका जो चेतावनी भरा एक स्थिति थी उसकी, वो खुशी में बदल गई। आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड सी नाउंड। उसने कहा कि एक काम करती हूँ, तुम्हारे और तुम्हारी इस मित्र के लिए, दोनों के लिए मैं ब्रेकफास्ट बना करके लाती। द डोरबेल रैंग व्हेन मिनी वाज कैजोलिंग मित्रा टू ईट हिज ब्रेकफास्ट। तभी अचानक मित्रा को मिनी खिला रही थी, उस समय डोरबेल के बजने की आवाज आई। When Minnie's mother opened the door, she was
greeted by a group of children all dressed smartly in their school uniform. Auntie, may we see the bird? They asked. जैसे ही आंटी ने दरवाजा खोला, देखा कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में दरवाजे पर खड़े हुए थे और उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि आंटी, क्या हम उस पक्षी को देख सकते हैं? The children were thrilled to see Mitra being fed with an ink filler. They helped Minnie to hold him still while he was being fed. बच्चे मित्रा को वहां पर खाना खाते हुए, इंक फिलर से खाना खाते हुए देख करके बड़े आनंदित हुए और उन्होंने मिनी की मदद की उसको खाना खिलाने में. They had to leave soon to catch the school bus. हालांकि उन्हें जल्दी थी क्योंकि उन्हें बस पकड़ना था. We will be back in the afternoon, Minnie, they said. Minnie also got ready to go to her school. उन्होंने कहा कि जैसे ही स्कूल की छुट्टी होगी मिनी, हम लोग आएंगे और इसको देखेंगे. इसके साथ ही यह कहकर के बच्चे चले गए. Now come in the next passage. Here you are looking the picture. There are a duck in the Minnie's lap and both mother and father caring for him. Come in the next passage. Poor ducky, how he must be missing his friend, said Bunty, one of the children, in the evening watching the duck. शाम को अब मित्र आए तो उनमें से एक बच्चे ने कहा कि ये बेचारी अपने मित्रों को कितना मिस कर रही होगी ये बतख. It is all the more hard for him now to make new friends because he is lame, said Anju, and realizing too late that what she had said, quickly recovered her mouth. अंजू ने तुरंत ही कहा कि अब तो ये अपने मित्रों से मिल भी नहीं सकती क्योंकि ये एक पैर से लंगड़ी हो गई है. और जैसे ही उसे महसूस हुआ कि अरे यार ये तो मिनी भी इसी स्थिति में, उसने अपना मुंह पकड़ लिया. वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, सेड मिनी. मिनी ने कहा कि नहीं, हम इसे मजबूत बना देंगे. आफ्टर दिस इंसिडेंट द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकम वेरी फ्रेंडली विथ मिनी. इस घटना के बाद में सभी बच्चे मिनी के साथ दोस्ती कर लिए. द चिल्ड्रन हैड एट लीस्ट रियलाइज्ड anguished Minnie must have gone through because they did not play with her. और सारे बच्चों ने यह महसूस किया कि शायद वो लोग मिनी के साथ खेलते नहीं थे, इसलिए मिनी का थोड़ा चिड़चिड़ापन हो गया था स्वभाव. The next day Anju brought a fate book with her.